We have not become mature, but God is leading us. So what is our hope? We can confess our hope. जैसे लास्ट टाइम मीटिंग में अपोस्टल पॉल ने कहा कि आई बिलीव देयरफॉर आई स्पोक, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं गवाही दे रहा हूं। तो आप विश्वास करेंगे जरूर, प्रभु हमारा जीवन में काम करेंगे और गवाही देंगे। गवाही के बजाय हमारा विश्वास प्रकट होता है और हमारा जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे और ये वी कैन एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइफ एंड विक्ट्री ओवर आवर लाइफ, हर ओवर एवरी सिन एंड एवरी बैड हैबिट। So, Sister Juhi is on the line. Sir, Brother Sonali. Sonali, yeah. Achha, okay, Sonali. Okay, yeah. Sonali is today. Correct. Sorry. So, as we read in Titus chapter 2, verse 1, as for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Verse 1. और जैसा कि हम तीतुस की किताब में से पढ़ रहे थे, तीतुस 2 उसका पहला वचन, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। See, as believers, we have to come together and encourage one another. और एक विश्वासी होने के नाते हमें इकट्ठा होना और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। What are we going to encourage one another? और जो कुछ हमारे पास है उससे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। So, regarding our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में से, so we must, when we come and meet each other, we can always talk, how are you, how's your health, and how are your children, all those things. और जब भी हम मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका हालचाल कैसा है, आपके घर में आपके बच्चे सब घर में के परिवार के लोग कैसे हैं। So, but beyond that, we must encourage one another to live a godly life, be faithful as a sister in the church, as a mother and a daughter in the home, and what are the difficulties we face and how God is encouraging us. और पर इसके ऊपर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है कि कैसे हमें एक परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, कैसे हमें घर में व्यवहार करना है अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। Most believers, when they come together, they talk about their clothes and their food and their holidays and all these things. ज्यादातर लोग जब विश्वासी भी पर एक दूसरे से मिलते हैं तो कपड़े तुमने कहाँ से लाए, क्या खाया तुमने, ऐसा सब सवाल करते हैं। And talk about so much about material things. और सब भौतिक वस्तुओं की बातें करते रहते हैं। And how our children have got good marks and how they did this in the music competition and that competition. All those things, all the worldly things, many sisters talk about these things. और बहुत सारी सांसारिक बातें कि तुम्हारे बच्चों ने कैसे क्या चल रहा है, म्यूजिक क्लास में कैसा कर रहे हैं, क्या कौन सी पोजीशन पे हैं, ऐसे सब बातें करते हैं। And they hardly talk about spiritual things at all. और बहुत कम ऐसा होता है कि वो आत्मिक रूप से बात करें। Like how to control my temper, how to control my tongue. कि अपने गुस्से को कैसे काबू में रखूं, अपनी जुबान पर कैसे नियंत्रण रखें। How to love my husband and my mother-in-law and my children. कैसे मैं अपने पति से प्रेम रखूं, कैसे अपनी सास से, अपने बच्चों से प्रेम रखूं। How to utilize the time that God has given us in a very good way. कैसे मैं उस समय को व्यतीत करूं जो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा समय दिया है। How to spend more time in prayer. कैसे मैं ज्यादा समय बिताऊं प्रार्थना में। How to read the word of God and meditate on the word of God. कैसे मैं परमेश्वर का वचन पढ़कर उसमें चिंतन मनन करूं। So the apostle, the Titus was sent to this place called Crete to teach all these new believers how to walk with the Lord. और तीतुस जो है ये जगह पर आए हैं, क्रीट जिसका नाम है, और परमेश्वर का खरा उपदेश सुना रहे हैं। And they came from a very bad background and they had very lot of bad habits. और बहुत ही ज्यादा जो पिछला जीवन है बुरा रहा है और गंदी आदतें भी हैं इन लोगों को। So that had to change, and little by little it had changed. The eating habits, drinking habits, talking habits, all have to change. और धीरे धीरे बदलना है अपने खाने की आदत को, बात करने की आदत को, और बहुत सारी आदतों को बदलना है अभी। And all our worldly ways of thinking have to change. और बहुत सारी जो सांसारिक सोच है वो बदलनी है। So this takes place from day to day and from month to month. और ये दिन पर दिन, महीने दर महीने हमारे जीवन में होगा। Suddenly things are not going to change in our life. अचानक से सब सारी चीजें नहीं बदल जाएगी हमारे जीवन की। Unless we make a daily effort in our life to listen to the word of God and read and pray and obey the word of God, then only our life will change.
जब तक हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको उस पर मनन करना, उसका पालन करना नहीं सीख जाते, then over a period of time we'll see that so many things in our life have changed, and we have got more of peace and joy and love in our hearts. और फिर बहुत समय के बाद, हम थोड़े समय के बाद देखेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, मेरे मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम सबसे ज्यादा बढ़कर है। Just like when children go to school, they study their lessons daily and do homework and listen to the teacher, they will do well in their final exams. जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो अपना होमवर्क अगर टाइम पे करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो फिर जो आखिरी परीक्षा होती है उसमें बहुत अच्छा परिणाम लाते हैं। It is not depends upon the school and the teacher, it depends upon the hard work that they do every day. ये कोई शिक्षक के ऊपर या फिर जो स्कूल के ऊपर नहीं होता है, ये बच्चा जो मेहनत करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। And a good teacher will always teach well and insist that the children go and do their homework and study at home. और जो बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं, और उनके जो शिक्षक है उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, तुम और अच्छे से पढ़ाई करो घर पर जाकर। Many believers, they don't do that. They just come and listen to the meetings, and then they do go into all the worldly things throughout the week. They watch all the wrong things, and then their spiritual lives do not grow at all. बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही करते हैं, सभा में आ जाएंगे, वचन को सुन लेंगे, पर वही फिर अपना जीवन बिताते हैं, जो देखना है टीवी में वो देखते हैं और अपने हिसाब से जीते हैं। You can go to the best church but still remain very backslidden and not grow at all. आप एक उत्तम कलीसिया में जा सकते हैं, पर फिर भी वहां पर आप बढ़ नहीं सकते, बदलाव नहीं आ सकता आपके अंदर। Jesus told about the people who told them, when like he said, the last day, many people will come and say, Lord, we ate in your presence, we drank in your presence, we listened to your messages. Jesus told them, I never knew you. You please go away from me. परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत तेरे आएंगे, मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे वचनों को सुना है, मैंने तेरे लिए कार्यों को किया है, पर परमेश्वर कह देंगे कि मैं तुझे नहीं जानता। Because you never bothered to obey God and in your day-to-day activities. क्योंकि आपने परमेश्वर की वचन को महत्व देना अपने रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझा। That is why when we listen to the word of God, we have to go back and obey the things which the Holy Spirit speaks to us. इसलिए हमें परमेश्वर का पास जाना है, हमें सुनना है पवित्र आत्मा हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। There are so many areas in our life that have to be changed. बहुत सारे जीवन के हमारे क्षेत्र हैं जहां पर हमें बदलना है। And if we think that nothing is wrong with us, then we are only deceiving ourselves, and ultimately we will be ashamed. और फिर हम जैसे कि देखेंगे तो हम निरुत्साही हो जाएंगे, और फिर हमें शर्म आएगी कि हम बदले नहीं। There are many preachers who tell that God has done everything for you. You don't have to do anything. God has done everything on the cross of Calvary, and you can live and just come to the meetings, and God will take you to heaven. और बहुत सारे प्रचारक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कलवरी की क्रूस पर प्रभु ने अदा कर दिया है, तुम्हें बस आना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है। But this is a period, this time which God has given us on this earth to live is for us to learn and to obey. पर ये जो समय है परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर दिया है जीने के लिए, वो हमारा सीखने का समय है। Jesus said to come to me and learn from him, learn humility and humbleness of heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ और मुझसे सीखो, मैं मन में कितना दीन और नम्र हूँ। And there are many believers who don't learn anything at all in the whole Christian life. और पर कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने पूरे मसीह जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते। Because even after so many years, they're still grumbling and shouting and fighting with each other. उनके जीवन के सालों साल वो वैसे ही कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। Jesus said, if you come and follow me every day, you will find rest for your soul. That means you will be at peace, more and more peace. और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे मन में बहुत शांति तुम्हें मिलेगी। That to come to Jesus means to always walk with him every day and talk to him every day. Not only the meetings, but after the meetings, this was the most important time. परमेश्वर के पास आने का मतलब है परमेश्वर की वचन को सुनना, उससे बातें करना, और सिर्फ सभा में ही नहीं, उसके बाद का जो आप जीवन जीते हैं उसमें भी। And the Lord will speak to us so many things in our life, encourage us and change us. तो परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करेंगे, हमें प्रोत्साहन देंगे, हमें बदलेंगे। And then we will be changed gradually and become more like the Lord Jesus Christ. फिर हम बदलेंगे और ज्यादातर परमेश्वर की जैसे हो जाएंगे। So
We will read these verses again from the Titus chapter 2, verse 3, 4, and 5. तीतुस 2, 3, 4 और 5वां वचन। Sister, you can read in Hindi. यस ब्रदर। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को सीख देती रहे कि अपने पति और बच्चों के से प्रीति रखे, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। Yeah. So the most important thing is that we live a life, our practical life will show that we bring honor to God. और हमारे जो रोज हम जीवन जीते हैं वो परमेश्वर के लिए आदर लाता है। For example, if a child goes to school and keeps on failing, that brings dishonor to his parents. जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल जाता है पर अपनी परीक्षा में पास नहीं होता, तो ये एक माता पिता के लिए एक हार का समय है। And if they don't behave properly and they are misbehaving and they are fighting, then it is a big shame to the parents. और ये अगर वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता, हमेशा लड़ता रहता है, तो ये माता पिता के लिए एक शर्मनाक बात है। So when we are behaving every day, God is watching us, the devil is watching us, and the angels are watching us. और यदि हम हमारे जीवन में ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें देख रहे हैं, पवित्र आत्मा देख रहे हैं, और शैतान भी देख रहा है। And then the angels will be so ashamed that God also be ashamed that the devil will all keep on making fun of us to God. Say, this is our children. See how much lies he's telling. See how he's shouting, and see how she's behaving. और स्वर्गदूत और यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, और शैतान जो है हम पर हंस रहा है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, कैसे ये चिल्ला रहे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं ये लोग। And but when we behave in a nice way, it says God also is proud. As it told God told about Job. Look at this Job. He is such a nice person, and he is always doing the thing right and turning away from evil and doing the things that is good. परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कहा था शैतान को कि कितना अच्छा व्यक्ति है ये जो मेरा भय मानता है और कितनी अच्छी तरीके से मेरे पीछे हो चलता है। So all of us who are doing work also should, as we read in verse 9, can you read sister verse 9 and 10? यस ब्रदर। 9 और 10 वचन। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामियों के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब ना दे, चोरी चालाकी ना करे और सब प्रकार के पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। So when we are really faithful in our life, everybody will see he's such a beautiful person, such a wonderful person, and give glory to the name of the Lord Jesus Christ. और यदि हमारा जीवन अच्छा होगा तो लोग भी कहेंगे कि कितना अच्छा एक व्यक्ति है, और उसमें फिर परमेश्वर की बड़ाई होगी हमारे जीवन से। So we must be, and even the teaching that we have received, yeah, this person is from this church and this person belongs to the Lord. Everybody is so happy. और सब खुश होंगे और कहेंगे कि हाँ अच्छा ये इस कलीसिया का व्यक्ति है, ये परमेश्वर यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, कितना अच्छा है ये। Suppose from your school somebody gets first in the state, first rank in state, everybody in the school is so proud. और जैसे कि कोई स्कूल में प्रथम स्थान पर आ जाता है उनके स्टेट में, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं। Not only principal, all the children, all the teachers are very happy. सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, सारे जो शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सबको बहुत खुशी होती है। So they bring glory and to the school. और फिर वो जो स्कूल है उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है। The same way when we live faithfully before God, the glory comes to the Lord Jesus Christ and to all the saints and the church and to the church. और यदि हम ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, और जो हमारे कलीसिया के जो एल्डर हैं उनको भी लोग प्रोत्साहन प्रसन्न करते हैं। So it says in verse 11 and 12, read again. Hindi. 11 और 12वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। 13 also and 14, 13, 14 also. 13 और 14 वचन। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा
के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। Yes, this is a wonderful thing that the Holy Spirit is always changing us. And we who are doing all the bad things in the past, now we'll do good things to glorify the name of the Lord. ये बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे बदलता है। पहले हम बहुत बुरे कामों को करते थे, पर हम परमेश्वर के लिए भले कामों को करते हैं। Most of our life is hidden life. In the secret life, we should do good, think good, and by the power of the Holy Spirit. और बहुत सारे जन जो है वो अच्छी बातों को करते हैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। So all the wrong, bad things like gossiping, backbiting, and all the wrong things that we do, and getting angry, and all that will go away from our lives, and good things will be replaced. और बहुत सारे जो हम चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो हमारे परमेश्वर हमें धीरे धीरे हमें बदलेंगे। And all the leaders in the church, the elders in the church, should always teach our dear brothers and sisters in Christ to live faithfully. और जो हमारे कलीसिया के जो प्राचीन हैं, वो हमें हमेशा सिखाएंगे कि परमेश्वर के लिए ईमानदारी से जीवन जियो। And each one of us also should encourage one another. और इसलिए हम में से हर एक को भी एक दूसरे को प्रोत्साहन जरूर देना है। So verse 15 we'll read. It says in verse 15, you must teach these things and encourage the believers to do them. You have the authority to correct them when necessary, so that they don't let anyone disregard what you say. और 15 वचन, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। Yes. So that's why all the brothers and sisters should encourage one another, that each one of us should live a godly life, whether we like it or don't like it. और हम में से हर एक भाई या कोई बहन भी हो, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हम एक ईश्वरीय परमेश्वर के लिए जीवन जी सके। So this thing is not just once and Paul we read. We have to read these passages many times. So there is a lot of things in our life. God changes little by little. और एक ही बार इस वचनों को नहीं पढ़ना है, पर बार बार इसको पढ़ते रहें ताकि परमेश्वर धीरे धीरे अंश करके हमें बदलते जाएंगे। So that is a wonderful thing that God does by the power of the Holy Spirit. और ये अद्भुत काम है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। And not only for us, but also all the people whom we try to come in contact with. और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जिस लोगों के संपर्क में हम आते हैं उनका भी जीवन बदलेगा। That all of us, we want all people to come to know the Lord Jesus Christ, to be born again, and to be disciples of Jesus Christ. और हमें से हर एक को ये चाहना है कि हमारे पास जो कोई भी आता है उसे परमेश्वर के लिए हम प्रोत्साहन दें और हमें भी एक नया जन पाया हुआ जीवन जीना है। That's how Jesus said we must be like a light in the world and a salt also. और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है और हम इस पृथ्वी पर एक ज्योति के समान है। So the light shows for the love of God, that others be attracted to God, as God is love, and their lives also be filled with love. और ये जो ज्योति है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है, और अब इसी प्रेम को, इस ज्योति को हमें दूसरों को भी बांटना है। And as a salt, we should always, whenever we come and meet people or do something good, their lives will become a little happy and so enjoyable. और नमक का अर्थ ये है कि जैसे कोई भी हमारे जीवन में को देखता है तो वो बहुत ही प्रसन्न हो, ताकि वो भी उसको प्रोत्साहन मिले। Salt gives taste. जो नमक है वो स्वाद देता है। So when people see us, they almost get a taste of heaven. और जैसे ही लोग हमें देखें तो उसे स्वर्ग का स्वाद आए। Earlier, everybody used to get the taste of hell from our lives. और हम में से हर एक कोई ऐसे जन है जो earlier in our lives we used to give them a taste of hell. हमारा जो पुराना जीवन है वो हम उससे हम एक नरक का स्वाद देते थे लोगों को। But now we can give people a taste of heaven. और अब हम स्वर्ग का स्वाद देते हैं। By our words, by kind words, good deeds. हमारे अच्छे बोल से, हमारे अच्छे कामों से। First in the home, then in our workplace, and in the church also. सबसे पहले हमारे घर में, फिर हम हमारे कार्य करने की जगह पर, और फिर उसके बाद कलीसिया में भी। Don't get discouraged. God is changing us every day, and we must be humble to accept our faults.
निराश मत होइए, परमेश्वर हमें हर एक दिन बदल रहे हैं और हमें पर अपनी गलतियों को मान लेना है। And then when we humble ourselves, God will give us the Holy Spirit and the grace of God to change our lives. फिर परमेश्वर अपना अनुग्रह देंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ देंगे ताकि हमारे जीवन बदल जाए। Amen. So sisters, now is the opportunity for you all to share whatever you have heard, something in your life that God is changing, and some area in your life God will help in, and whatever the word of God, प्रभु आप लोग भी एक बार शेयर कर लीजिए और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर लीजिए। सिस्टर्स का मीटिंग है, तो आप जरा शेयरिंग का मीटिंग है, सो एवरीबॉडी कैन शेयर। तो कोई भी शुरू कर सकता है, एनी सिस्टर, वन बाय वन यू स्टार्ट। एक 2 मिनट ले लीजिए। कोई भी शुरू कर लो, कोई भी टेस्टिमनी भी दे सकता है, प्रभु क्या किया, प्रभु को धन्यवाद भी कर सकता है। कौन चालू करेंगे पहले? रेखा सिस्टर, दीपिका सिस्टर, बाकी एक एक करके चलो। लीजा, कोई के दिल से बात कर लीजिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस सभा के द्वारा मुझसे बात की। जब मैं मेरे विश्वासी सिस्टर से जब बात करती थी तो हम हमेशा भौतिक विषय के बारे में बात करते थे, तो प्रभु ने मुझे आज ये बताया कि हमें आत्मिक चीज़ों के विषय में बात करनी है, भौतिक चीज़ों के विषय में नहीं। और बात करने में भी हमें अंकल हमेशा यही बताते कि हमारा बात करना दूसरों को कभी वो निराश नहीं होने चाहिए, सुनने वाले उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर प्रभु ने मुझे मेरी गलती दिखाई है कि कभी कभी मेरे द्वारा लोग हर्ट हो जाते थे, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरी गलती दिखाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे ज़बान से मेरे घर में और मेरे विश्वासी सिस्टर्स जो भी है तभी से मैं बहुत ही नम्रता और दीनता से बात करूँ और कोई भी मेरे बोलने के द्वारा हर्ट ना हो, यही मैं चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए एक एक करके, जो कुछ भी है आपका दिल में बात कर लीजिए, बाइबल भी खोलने का जरूरत भी नहीं है। सब लोग है एक एक करके। अनीता, डोना, रेखा, लीजा, मनीषा, आपके साथ आप लोग सिस्टर्स तो बहुत बात करते हैं, अभी तब मीटिंग के टाइम में प्रभु का धन्यवाद करके शेयरिंग ज्यादा करना चाहिए। थोड़ा दिल के बात हमारा जीवन में प्रभु क्या काम कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के लिए खास तौर से यहाँ पे जो बताया है, सही में वाकई में हमारे जीवन में ये सबसे पहली सारी बहनों के लिए पहली मिनिस्ट्री है। हमारा घर, हमारा घर, हमारे बच्चे और हमारा पति जो है, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी अपना घर, अपने माँ बाप, भाई जो है, तो उसमें हमारी हम जो आदर से रहते हैं और परमेश्वर के भय में रहते हैं, वही हमें हमारे जीवन में रुचि लाते। जैसे अभी ब्रदर ने बताया, सही में हम लोग इस दुनिया में लाइट है, एक ज्योति के समान है और स्वाद है हमारे जीवन में, रुचि है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आज मैं मेरी माँ के लिए कि जो संस्कार दिए हैं एक माँ ने, कि वो भी एक टीचर थी, अपना घर संभाल के घर पे उसका पूरा ध्यान रहता था, अपना काम संभाल के भी वो जिस तरीके से उसने मुझे खुद का उसका जीवन था वो देख के मैं भी सीख गई। उस वक्त तो पहले इतना काम नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर माँ के हाथ के नीचे जो माँ सिखाती थी वैसे करते गए। और अब उस वक्त कुछ कुछ बातों में ऐसा लगता था कि माँ
ऐसे क्यों करती है, कुछ बातों का गुस्सा आता था कि नहीं अपने को ये कहती है, या भाई लोग हैं उनकी जब शादी हो गई या जो कुछ भी है तो उनकी तरफ उनका जो झुकाव है, उनके तरफ कंसर्न है, तो कभी कभी समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे अभी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है तो मैं भी समझ पा रही हूँ कि माँ का मन कैसे होता है, और कैसे उसकी तरफ देख के उस वक्त जो बातें मुझे खटकती थी, आज मुझे पता चल रहा है कि उस बात का महत्व। तो हमें जब हमारी उम्र बढ़ती है तो सही में ये बात मैं समझ गई हूँ कि हमसे जो छोटी है उन्हें हमें सिखाना चाहिए। और पहले 20 साल पहले की दुनिया अलग थी, आज अलग है। और खास तौर से इस लॉकडाउन में जो हमने सीखा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमें खुद का काम कम से कम आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। मतलब अनमैरिड जो लड़कियां हैं, लड़के कोई भी हो, कम से कम खुद का काम आना चाहिए जो हमें हर जगह पे काम आएगा। तो जो मैं मेरे माँ से सीखी हूँ, तो मुझे काम करने की वो आदत रही है। और घर पे जैसे रिश्ते नाते हैं या घर में जो कुछ भी जिस तरीके से रहना है वो मैं सीख गई। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे माँ और ऐसा घर मिला। और मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें भी, हमारा सबसे अच्छा जीवन जो है वही परमेश्वर लोग देखते हैं। हमें अगर सुसमाचार सुनाना है या हम चाहते हैं कि लोगों को हमारे प्रभु के बारे में पता चले, तो वो सबसे पहले वो जो मैसेज है उसकी वो बाद में समझ लेंगे, लेकिन जब हमारा जीवन सही होगा तो ही वो मैसेज उनकी तरफ पहुंच जाएगा। तो मैं यही इंकरेज करना चाहती हूँ हर एक बहन के लिए कि हमारे जीवन में, जैसे ब्रदर हमेशा कहते हैं कि संडे का नहीं, कि मंडे के बाद का जो जीवन है, हमारे घर में जो बातें चलती है, हम जिस तरह का जीवन जीते हैं, जहां कहीं भी हो, हमारे स्कूल कॉलेज घरों में या काम की जगह पे हमारा जैसा व्यवहार रहता है लोगों के प्रति, कि जब सामने वाला हमें कुछ हर्ट करता है या कुछ गुस्सा दिलाने वाली बात करते हैं, या रास्ते पे भी, तो उस वक्त हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, उस वक्त हम कैसे बात करते हैं, या उस वक्त हमारा एटीट्यूड कैसे होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा आने वाली चीजें हो जाती है, लेकिन वो भी हम किस शब्दों में बयान करते हैं हमारी बात। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो एक माँ होने के नाते हमारे बच्चे ये देखते जाते हैं, हम उन्हें जो सिखाते हैं मुंह से, वो शायद उनके कान बंद होते होंगे, क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो छोटे रहते, जब बोल भी नहीं पाते, उस वक्त भी वो हमारा बिहेवियर देखते हैं। और खास तौर से मैं बहनों के लिए बताना चाहूंगी, एक माँ जो है, उनकी जो बेटियां रहती है, वो बहुत जल्दी बेटियां बहुत ही जन्म से ही इतनी मैच्योर्ड रहती है, मतलब समझ जाती है, तो वो माँ का हर एक चीज वो सीख लेती है। तो माँ के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपना जीवन अपने पति के साथ में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, जहां कहीं भी हो, वो किस तरीके से बिहेव करती, वो कैसा सोचती है, उसके ऊपर उसने ध्यान देना चाहिए। और प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु तू सहायता कर मेरी, जहां कहीं भी मैं कम हूँ। मैं भी काफी सारी बातों में कमी मेरी थी, और प्रभु ने मुझे दिखाया उस तरफ, और उसकी बातों में मैं दिलचस्पी लेने लगी, उसकी बातों की तरफ मैं जब बढ़ने लगी, तब वो जीवन में शांति आई। परेशानियां हर एक के जीवन में अलग अलग है, लेकिन उसमें कैसे चलना है, तो प्रभु के वचन से हमें शांति मिलती है, और वही फिर हमारे बच्चों की तरफ भी जाता है। और सबसे पहले एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे अगर लिखा है कि जो अपने से कम उम्र की है, युवा जो है, उन्हें सिखाना है प्यार करना, अपने पति को और बच्चों को। तो यहाँ पे अगर लिखा है प्यार करना, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे तो कमी है, वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। प्यार मतलब आजकल जो फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियल में दिखाते हैं, उस टाइप का प्यार नहीं है। प्यार मतलब जो त्याग है, उसके पीछे की जो भावना है, जिस तरीके से हमारा व्यवहार है हमारे पति के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में, और हमारे घर के सारे सदस्यों के सामने, जो रिस्पेक्ट है, पति, उसके घर के सब लोग, अपनी भी माँ, अपने भी बाकी के लोग, तो जो बैलेंस लाइफ है वो जो है बच्चों तक पहुंचता है। तो यही हम सब बहनें प्रभु के मार्ग में चले, उसकी शांति में जिए। सबसे पहले अपने दिल में शांति प्रभु से मांगे, तो ही वो शांति हमारे घर में आएगी और हमारे घर में खुशी होगी। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हर घर, मसीही घर जो है, वो शैतान का निशाना है, क्योंकि शैतान चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि एक मसीह घर अगर सही में मजबूत हो, विश्वास में, प्रभु के प्यार में, तो क्या क्या हो सकता है उस घर के द्वारा, हर एक इंसान के द्वारा। इसलिए वो घर तोड़ने का काम करता है शैतान।
तो कभी भी हमें उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब कभी भी कोई हमारे घर का सदस्य कोई भी क्यों ना हो, हमारे सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, जो कोई भी हो, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो सबसे पहले हमें, जैसे वचन में कहा, ये लड़ाई हमारी उनके साथ नहीं है, तो उनके पीछे से शैतान हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। तो हमारे लोग जो है उनके प्रति हमारा प्यार होना चाहिए और हमें प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु तू सहायता कर, वो शैतान उनका इस्तेमाल ना करे। और हमें डट के खड़े रहना है। अगर हम विश्वास में खड़े रहेंगे, एक माँ, एक बहन, जो कोई भी एक महिला है, बहन है, उसमें इतनी शक्ति परमेश्वर ने दे के रखी है कि वो पूरे घर का अपना ध्यान दे सकती है और संभाल सकती है। तो ऐसे ही विश्वास में वो हर कोई बहन मजबूत रहे और अपने घर को बचाए, उसके ऊपर है। एक स्त्री एक घर बनाती है या तो बिगाड़ती है। तो प्रभु से मांगे कि हम हमारे घर बनाने वाले बने। आमीन। प्रभु की महिमा हो। और सिस्टर्स भी शेयर कर रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये हर एक वचन जो मैंने पढ़े हैं तीतुस अध्याय में, जो ब्रदर ने जिस तरीके से हमें पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा बदला है, क्योंकि मैं बहुत ही अलग एक किस्म की लड़की थी, क्योंकि मतलब परमेश्वर में आने के बाद भी कुछ ऐसा खास बदलाव मेरे जीवन में नहीं था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, हियाव नहीं छोड़ा मुझ पर कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने मुझे थाम कर रखा है और आज भी वो मुझे सुधारते रहते हैं। और कुछ बहुत सारी बातें मेरे अंदर थी कि संयमी नहीं थी मैं, और मैं पलट कर जवाब दे देती थी, और बहुत सारी बातों से मेरे जीवन में मैं कहती तो थी, क्योंकि मैं बहुत पहले ही विश्वास में आ गई थी, पर मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं था। भले ही मैं 17 इयर्स की थी तभी विश्वास में थी, पर उसको विश्वास में आना नहीं कहते। अभी अगर आज जिस पर मैं जहाँ मैं हूँ, अभी मैं परमेश्वर के पीछे अभी चल रही हूँ, पूरी परफेक्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं पिछले जीवन को देखूं, पर अभी मैं देखती हूँ तो मैं बिल्कुल विश्वास में नहीं थी। मैं ऐसा कहती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रखती थी, और मैं वही करती थी जो मुझे मन करता था मेरा करने के लिए। पर फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे बदला, मैंने प्रार्थना करना शुरू करी, पर फिर भी बहुत सारी बार मैंने बहुत सारी हार को देखा है मैंने मेरे जीवन में। बहुत सारी बार मैं गिरी हूँ, क्योंकि और फिर मैं परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु मैं नहीं सुधर पाऊंगी, मैं ऐसा बोल देती थी, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता था कि मैं गलती कर देती थी, उसके बाद मुझे परमेश्वर का वचन याद आता था कि अरे प्रभु का वचन तो ये कहता है। फिर मैं निराश हो जाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे ये सीखा कि मुझे निराश नहीं होना है, दोष नहीं लगाना है, क्योंकि ये शैतान की ओर से है। और जब मैं ब्रदर जैक को सुनने लगी थी, फिर मैंने धीरे धीरे समझना चालू किया, और फिर अभी मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे ये संयमी होना, और मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं परमेश्वर को दिखा रही हूँ अपने जीवन से, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं एक मसीह हूँ, तो मैं परमेश्वर को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भी ये जो वचन है कि मेरे भले कामों से परमेश्वर को शोभा दे, मतलब यहाँ पे 10वां वचन है, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। मतलब मैं सब प्रकार से पूरी विश्वासी निकलूं कि सब बातों में मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उपदेश को मैं शोभा दूं। मेरे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए मेरे जीवन से। और मैं पहले ऐसा कहती थी कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सुधर पाऊंगी, मैं कब सुधरूंगी, मैं ऐसे ही परमेश्वर से बोलती रहती थी। पर अब प्रभु, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझे धीरे धीरे जरूर बदलेंगे, और जो कुछ भी है, मैं अगर पाप करती हूँ और कुछ भी अगर करती हूँ तो परमेश्वर के सामने जाके मैं मानूं उस बात को, तो परमेश्वर मुझे अवश्य मुझे बदलेंगे। कोई भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, और परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे हमेशा हर एक भले भले कामों को करते रहना है और परमेश्वर के लिए सरगर्म रहना है। मैंने इस वचनों से बहुत सारा प्रोत्साहन पाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे इन दिनों में जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो डेली ऑफिस जाना, वर्क रूटीन करना, बिजी लाइफ हो गया था। तो मैं सोच रही थी, प्रभु मेरा लाइफ ऐसे ही जा रहे तो मैं और कभी आराम से बाइबल रीड कर पाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, मुझे समय भी स्पेंड करना है आपके वचन में, ऐसा मैं सोच रही थी। तो तभी और मुझे डेली ऑफिस जाके आना भी थकावट फील हो रहा था। मुझे प्रभु के वे में और समय स्पेंड करने का था, कि प्रभु से बात करने का था। प्लीज प्रभु मुझे हेल्प कीजिए। मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहे कि ऐसा काम करना। मुझे आपके प्रार्थना करने में समय स्पेंड करना है, उसमें मुझे अच्छा लगता है करके मैं इसे प्रार्थना कर रहे थे एक दिन बैठ के। तो तभी मुझे प्रभु ने ऐसे सोच में आंसर दिया कि डेली जो वर्क जाती हूँ रूटीन टाइम का, तो इवनिंग टाइम में थोड़ा जल्दी निकलने के लिए पूछना है ऑफिस में बॉस को करके सोच विचार आया। गॉड ने मुझे थॉट दिया है, तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने अलाउ भी किया है बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैं अभी अल्टर डे जल्दी आके बाइबल रीड करते, प्रार्थना करते हुए, वर्ड ऑफ गॉड सुनते हुए टाइम समय स्पेंड करती हूँ, तो मुझे और अच्छा लगता है, अभी लाइफ में चेंजेस लगता है। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे इतना हेल्प किया है। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। तो कम समय और है, सबको एक एक करके टाइम ले लीजिए। तो रोजी, वो टाइम जब आपका से भी साक्षी लेना है। सीमा, शारदा, स्टेला सिस्टर, थोड़ा कुछ बोल दीजिए। सुचित्रा, तो रूबी है। आवाज थोड़ा थोड़ा कट गई है। और कोई भी शेयर कर सकता है? मैं ये बोलना चाहूंगी कि लॉकडाउन के बाद जैसा कोरोना हो गया है, तो भी मैं न्यूज़ देखती थी। न्यूज़ में जो मैं देखती थी कि ज़्यादा करके वो न्यूयॉर्क में वगैरह इतना बॉडी का जो बॉक्स में लेके जाता था, वो ये सब इतना एक एक मतलब जगह कम पड़ रहा था, इतना लोग मर रहे थे। तो वो सब मैं देख रही थी। मुझे वो टाइम में ऐसा लगा कि अभी गॉड का टाइम, अभी किंगडम नजदीक आ रहा है लगता है। ऐसा इतना मतलब ऐसा एकदम सडनली सोचना भी नहीं हो सकता, ऐसा बीमार आ गया, लोग इतना मर रहे हैं कि ऐसा। इतना में मुझे भी माइल्ड कोविड हो गया था। तो बाकी रिपोर्ट तो ठीक आया था, मगर वो बाद में डॉक्टर ने बताया कि ये लेके आओ वो लेके आओ सब। तभी मेरे को जो माइल्ड दिख रहा था कोविड, तो उसके बाद मुझे भी जिस दिन मेरे को ऐसा मालूम पड़ा मेरे को कोविड है, डॉक्टर ने भी बोला थोड़ा तुम लोग घर पे क्वारंटाइन करो अकेला, क्योंकि मेरा घर पे छोटा बच्चा है, पोता है मेरा। तो तभी ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मैं
किधर रहूंगी, मतलब जीसस को मैं देख पाएगी क्या, जीसस को मैं मिल पाएगी, मैं एम आई रेडी, मैं ऐसा मेरे को मन में आया। सडनली मुझे ऐसा लगा कि पूरा मेरा लाइफ लाइफ का क्या वैल्यू, ऐसा मेरे को मालूम हो गया था। तो ये मैं एक दिन एक्चुअली मेरे को फुल नाइट में सोच रही थी कि फिर भी मैं सोचा कि वट एवर दैट इट इज, अपने पास जितना टाइम है हम लोग वो टाइम हम लोग को ट्राई करने का, हमारा जो भी है अपना ऐसा, तो हमारा हिसाब से हम लोग सोच रहे कि हाँ मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ, बाकी सब चीजें जो भी है, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकते है, ऐसा हम लोग हमेशा सोचते हैं। तो ऐसा में फिर मैं सडनली बहुत सीरियस हो गई थी क्रिश्चियनिटी के बारे में। मेरे को ये लगा कि थोड़ा तो कुछ बर्डन था हमारा, वो सब मेरे को गॉड ने क्लियर किया है, वो मैं सोच रही थी अरे हाँ वो सब क्लियर हो गया, मैं अभी थोड़ा फ्री हो गई हूँ उसमें सब, मगर बाकी भी अपना जीवन में क्या क्या है वो सब मैं मेरा सही है क्या। तो उसके बाद मैं बहुत सारा ज्यादा करके बाइबल स्टडी करने को शुरू किया, और मैं ज्यादा प्रेयर भी मैं करने को शुरू किया था। मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत अच्छा लगता था न्यूज़, मगर वो टाइम में कोविड का वजह से हम लोग पेपर भी बंद किया न्यूज़पेपर, तो वो टाइम भी मेरे पास बचता था, और अभी भी हम लोग न्यूज़पेपर अभी तक लिया नहीं। तो मेरा वो भी हैबिट गया, और बहुत सारा चीज जर वेस्ट होता है टाइम, वो सब मेरा छूट गया ज्यादा करके। तो वो मेरे को एक अच्छा ये हो गया था, नंबर योर डेज। मैं हमेशा बोलती थी, मैं बच्चे लोग को भी मैं बोला था, मेरा अभी ऐसे ऐसा मेरे को फीलिंग हो गया था कोविड के बारे में। तो वो एक अपने को चेतावनी है, यानी जो हम लोग को कैसा, हम लोग अगर पीछे है, हम लोग रेस में पीछे है, तो हम लोग और तेज लगा सकते हैं हमारा भाग दौड़ने में, रनिंग में हमारा, ऐसा सब मेरे को मन में आया। तो वो एक मेरे को अच्छा लगा कि वट एवर द सिचुएशन, थोड़ा मैं मेरा बहुत ही सारा इम्प्रूव हो गया है उसके बाद। तो बाद में पता नहीं गॉड का हाथ में है, जो भी जजमेंट है, अपना तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई ऑल्सो मेरे प्रेयर भी है सब ऑल द चर्च ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए भी है, मैं वही प्रेयर करती हूँ, एल्डर्स को भी वही प्रेयर करती हूँ कि हम लोग सब आपका किंगडम में आने के लिए लायक हो, हम लोग का जो जर्नी है वो अधूरा नहीं हो लॉर्ड, ऐसा में प्रेयर भी है, इसमें मैं बोलना चाहूंगी। Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु के। मैं कुछ कहना चाहती थी, परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किस रीति से कार्य किया। जब जोशुआ कंसील हुआ था तब बहुत चिंतित थे हम लोग, क्योंकि यीशु को जॉब नहीं था, कैसा होगा, क्योंकि ग्रेस के टाइम भी ऐसी हुई थी, जब ग्रेस हुई थी तो यीशु का जॉब गया था, पर प्रभु ने अद्भुत रीति से ग्रेस को संभाला। तो वैसे ही जोशुआ के भी टाइम ऐसे ही हुआ था हमारे जीवन में। तो हम लोग ने ब्रदर से बातें की, थोड़ा ब्रदर ने भी हमें एंकरेज किया कि प्रभु तुम्हें संभालेगा, और सचमुच पिता हमें संभाल अद्भुत रीति से। अभी जोशुआ जैसे मतलब बीच में जो बहुत सर्दी था, खांसी 3 दिन दिया था, और बोले कि क्योंकि वो बचपन में हम लोग ने उसका एडमिट 20 दिन के बाद उसको खांसी हमेशा रहता है, तो ये लोग चिंतित रहते कि कभी ये सर्दी खांसी निकलता। और भी बस उस डॉक्टर के लेके गए थे, तो उन्होंने 3 दिया, वो 3 दिन खत्म नहीं होगा तो वापस आओ, क्या करना है। तो मेरी प्रार्थना की परम आपने वो बच्चे, ये मेरे नहीं है, हमेशा प्रभु यही प्रार्थना करती हूँ और जोश कि परमेश्वर आपने दिया, आप भी से कुछ कर भी आप तो हमेशा कर रही, जब
उदासी, कोई दिन बचता था। एक दिन तो मुझे पूरा परेशान सोया के प्रार्थी पर में हो रहा है और प्रार्थी थी और मैं यही सोची कि प्रभु आप ठीक करेगी, ये मेरा विश्वास है। तो फिर प्रार्थना कर रही थी और जैसे जोर खांसता था तो मेरे चिंता बढ़ती थी, ऐसा खांस रहा है करके मैं प्रार्थना की और दवा जब देती तो मैं यही विश्वास करती थी प्रभु आप ठीक करेंगे। और प्रभु ने अद्भुत रीति से जोशुआ को ठीक खांसी को कंप्लीट। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और कोई है शेयर करने के लिए? गवाही देना हमारा एक आदत बनना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में जरूर काम करेंगे। तो we all have हाँ ठीक है। बोलो सिस्टर। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। मैं 3 साल से मेरा घर एकदम टूटा फूटा था, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं थी। बहुत जन आए थे देख के चले जाते थे, लेकिन कोई मुझे अच्छी तरह से बोलते नहीं थे कि मैं ये घर को बना सकता हूँ करके। बहुत 3 साल तक मैं ऐसे ही इसी घर में रही। लेकिन एक दिन मैं प्रभु के पास गई और प्रभु को बोली, प्रभु जो आपकी इच्छा है वही मेरे जीवन में पूरी करो पिता। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन जो आपने मुझे घर दिया है मेरे पिता, उस घर में जो भी कामकाज अधूरा है मेरे पिता, उसको पिता मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप प्लीज उसको पूरा कीजिए मेरे पिता। ये प्रार्थना करने के बाद 2-3 दिन के बाद एक कारपेंटर आया और मैंने सब बताया उसको कि ऐसे ऐसे मेरे को ये सब घर बनाने का है। और कड़िया वाला भाई भी आया था, उसको भी मैंने बताया कि मेरे को ऐसे किचन बनाने का, इधर ये करने का है, ये सब चीज उसको बताया। लेकिन मेरे लिमिट के बाहर था वो सब। लेकिन फिर मैं प्रभु को बोली, प्रभु मैं क्या करूं मेरे पिता, आप मुझे सहायता कीजिए। मेरे पास जो भी है उसी के अंदर मुझे जाना है, मुझे उसके लिमिट क्रॉस नहीं करना है करके। लेकिन वो भाई ने मुझे वो मेरे पास जो रकम थी उसके अंदर ही मुझे ये सब चीज करके दिया, मेरे बजट के अंदर ही करके दिया। उस बाथरूम वगैरह किचन भी करके दिया। कारपेंटर ने भी पूरा काम किया। 4 महीने से मेरे घर में काम चल रहा है। और आज मेरे घर को ऐसा प्रभु ने बनाया है कि जितने भी आते हैं जाते हैं सब देखते बोलते कि अरे मैडम आपका घर तो बहुत अच्छा बन गया। मैंने कहा इसमें मेरे कोई प्रशंसा करने जैसी नहीं है। ये सब कार्य मेरे जीवन में मेरे यीशु ने किया है, क्योंकि मैंने यीशु के हाथ में ये सब कार्य दिया है कि पिता आपकी इच्छा मेरे घर में पूरी हो जाए मेरे पिता, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। और घर मेरा आज पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है घर बनाने के लिए, जैसे कि कलर बाकी है और लाइटिंग का भी बाकी है और भी बहुत छोटा मोटा काम बाकी है। लेकिन प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम पूरा यीशु करने ही वाला है। और यही विश्वास से मैं आगे बढ़ी हूँ और प्रभु ने मेरा कार्य आज पूरा किया है। यही मैं सबसे कहती हूँ कि प्रभु के ऊपर ही विश्वास करो, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करना उचित नहीं है। और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरा सारे कार्य को पूरा किया मेरे बजट के अंदर। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और किसी को तरफ कुछ गवाही देना है? हाँ। जोर से बोलो माइक। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ 3 से। इसी प्रकार बुरी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और मैं आपसे एक से फिर से पढ़ना चाहती हूँ। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए,
दोरंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं पर काम करते हैं और जो कुछ बात के क्या कहते हैं उसे, जो बात विरोध होता है तो उस अगर हमें कोई मालिक अगर कुछ खराब से बोले, हमें जो अगर तर्कातर्की जो नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, तो हमें अगर गलती ना भी हो, हम अपने बॉस से कहना चाहिए कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि हमारा मसीह जीवन में ऐसा अनुमति नहीं है कि हम लोग बहस करें। और हमें नम्र और शांत स्वभाव प्रभु का जैसा बनना चाहिए। वो जो मेरा पहले जो हमें गुस्सा वुस्सा आता था, वो चीज हमारा नहीं होना चाहिए, ताकि वो लोग भी मुझे कहते हैं कि जो प्रभु में आके आप बहुत चेंज हो गया। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। हमें आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। संयम पति वाली वो अपने अपने पति के होता है, मुझे वचन कीना होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने जीवन से सोचती हूँ कि कभी मुझे किसी के मतलब कोई मुझे बोले ना, और अपना काम को मतलब जैसे करना है वैसे मैं काम करूँ, परमेश्वर के और परमेश्वर की इच्छा पे चलूँ। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य बल देता है कि हमेशा चलने के लिए कि कैसे तुम्हें चलना है। जैसे पति काम पे चले जाते हैं तो कैसे काम करना है, उसे बच्चों को कैसे संभालना है, घर बार कैसे संभालना है। अभी बीच में उनका पेपर चल रहा था, तो मेरे पति का पेपर चल रहा था, तो मैं सोचती थी कैसे संभालूं, कैसे मैनेज करूं। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे ताकत बल देता है, और बच्चों को संभालने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रभु का मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ। कभी मेरे को जैसे प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खाना पीना बनाती हूँ तब मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, प्रभु आपको पता है कि मैं क्या कैसे चल रही हूँ, कैसे नहीं चल रही हूँ। इसी तरह मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, अपने लड़की को, बड़ी वाली को, छोटी वाली को, कि आप परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए हमें, और परमेश्वर क्या बोलता है अपने से, कैसे परमेश्वर की इच्छा पे स्कूल जाओ तभी प्रार्थना करके जाओ, चाहे छोटी प्रार्थना करो लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो। और उसके बाद फिर परमेश्वर की इच्छा पे अगर कोई भी आपसे पूछता है तो परमेश्वर के बारे में बताओ, चाहे टीचर हो चाहे फ्रेंड हो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन में पूरा जो लिखा है 2 में 1 से लेके पूरा 15 तक के वचन से हमें यही सीखने मिलता है कि हमें अपने बच्चों को, और जो भी अपनी माता हो चाहे अपनी सास हो, उन्हें सब ऐसे बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सही है गलत है। और हमें कभी कभी बूढ़ों से भी अपने सीखने मिलता है, अपने अपने सास से, और अपने जैसे जैसे पुराने रहते अपनी दादी दादा, उनसे भी सीखने मिलता है। तो यही वचन से ये लिखा है कि परमेश्वर ने कि उन्हें भी हमें बचाना भी चाहिए, कि वचन से बता के वो बचे, कि वो पुराने जमाने और जो खाए संसारिक में जीते थे उन्हें नहीं जीना चाहिए। प्रभु का मैं यही धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें संभालता है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहा है दिन प्रतिदिन। पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए हमको रोज। सो जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करें। हम जो कुछ भी काम करते हैं प्रार्थना में कर सकता है, निरंतर प्रार्थना कर सकता है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं है। तो जब काम करते हैं, खाना खाते हैं, तभी प्रभु का याद रहना चाहिए, हमारा मन प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। तभी प्रभु कहता है कि जो उनका मन, अपना मन प्रभु पे रहेंगे तब उनको हमेशा शांति रहेगी, क्योंकि हम सब प्रभु के ऊपर हम सौंपते हैं।